टॉपिक को अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाँ, किसी दिमाग में आ रहा है कैसे हटेगा? ये ना कुछ इंसर्ट बटन दबाया हुआ है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन within 30 days from date when you become liable to pay tax. नहीं, इस दिन आपको अप्लाई करना है, नो टाइम लिमिट। एज एंड व्हेन एप्लीकेंट थिंक्स फिट, जब मन आए तब अप्लाई करो भाई, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेंट थिंक्स फिट। ओके, लिखते जा रहे हो? Registration shall be effective from the date ये लो भैया सेट 25, 1, 10, 11 तीन सेक्शन इसमें कवर्ड हो जाए। आप एक एक करके चार्ट बनाते जा रहे हो और आपका एक एक करके टॉपिक कवर होते जा रहा है। हाँ,
25 2 4 5 8 7 distinct person. हाँ बोलते जाओ भैया, ये तो मैं आ गया, ये तो मैं आ गया. हो गया क्या? बस हो गया खत्म. नेक्स्ट. आपने कर लिया 25 2 3 4. उधर क्या हो गया? 1 हो गया. 1 2 3 4 हो गया. 5 भी हो गया.
25 sits A, sits B, sits C, sits D. Aadhaar, authentication. Aadhaar authentication. Sits A. Those who are already registered. Must authenticate Aadhaar. Sits B, क्या था याद नहीं आ रहा है. An individual who needs registration. बताओ क्या. An individual who needs registration must apply with Aadhaar and get Aadhaar authenticated. And get Aadhaar authenticated. हो दिया क्या? Sit C. If a person other than individual make an application for registration then must provide for Aadhaar of authorized signatory and such members of director, partners, such number of directors, partners, such number of directors, partners, trustee, etc. as prescribed. अभी क्या 25 6 D क्या बोला हुआ है? Exceptions of Aadhaar authentication. नहीं. Central government may notify on recommendation of council persons who does not require Aadhaar authentication. इनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए. किसको? प्लीज डू अननेसेसरी. अब ये प्लीज का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म आप अपने आप लिखिए. पी कॉन, एल कॉन, एच जेड नहीं है, वो पी एल एस है.
PSU, L for local authority, S for statutory body, D for government department, U for UIN holder, N for क्या? हाँ, not a citizen of India. आपने देख लिया प्लीज डू अननेसेसरी का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? क्या क्या आ गया? 25, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया. ठीक है, आते 8 में. ठीक, 8 में क्या है बताओ. कंपल्सरी अलॉटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन. पीओ में, पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर. प्रॉपर ऑफिसर में अलॉट रजिस्ट्रेशन नंबर टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन. such registered person if not satisfied with such allotment may appeal within 30 days against such registration if satisfied with such allotment. With such allotment. तो क्या करने का बताओ? Need to apply for this registration within 90 days. After registration, registered person need to furnish his bank details to proper officer. If furnish within 30 days, नो इम्पैक्ट. आपको देना है, बस आपने दे दिया. If does not furnish within 30 days, his registration may be cancelled by PU. (26) Registered in CGST, then deemed to be registered under
IG, SG, UT, SIS। 8 में रजिस्टर्ड, सब में रजिस्टर्ड। एटलीस्ट कुछ लोग को तो ऐसा बोलना ही चाहिए। लो मेरा, मैं लिखा रहा हूँ, लिख नहीं रहे। आईपैड में खराब इसलिए कि तुम्हें तो दबा के लिखवा रहा है भाई। तुम कभी हमारे वाले में तुम्हें तो जगह नहीं दे रहा, हाथ हिलाने नहीं दे रहा, पे बोले एंड्राइड हिलने भी नहीं दे रहा तुम मेरे को। कैजुअल टच पेयर एनआरटीपी। not having a permanent place of, not having a permanent address in the state where a temporary venture to be carried on। और वैसे मैं खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ भाई, बैठ के पढ़ाने में थोड़ा सा आलस आता ही है। Not having a permanent address in India and the person wish to carry a temporary venture, temporary business in India। ये मैंने देखा क्लास में, मेरी सबसे बेसी भाई बहुत तूफान लड़ता है जो बोलता है ना, सब खुद को भी नहीं पता वो क्या बोल रहा है। Apply for registration at least 5 days prior to commencement of business। पांच दिन पहले अप्लाई करिए। Registration shall be valid for maximum 90 days and can be extended for maximum, can be extended for further maximum 90 days। 90 plus 90, 180 days। इससे बेसी हो ही नहीं सकता। नेट जीएसटी estimated, net GST payable for the registered period। रजिस्टर्ड पीरियड 10 दिन है तो 10 दिन, 90 दिन है तो 90 दिन। नेट जीएसटी पेबल फॉर द रजिस्टर्ड पीरियड नीड टू बी पेड in advance। 5 days prior to commencement of business।
नेट अंडरलाइन कर लेना भाई जोर से। और क्या बोलना बोलो। आफ्टर दी such person need to file GST return, and if advance falls short, then pay remaining tax. If advance remains surplus, then casual taxpayer or NRTP can claim refund of such surplus after expiry of registration. And file in all return. सारा रिटर्न भर दो और अपना एडवांस टैक्स जो दिया हुआ उसका रिफंड ले लो। हैंड राइटिंग ठीक जा रहा है, थोड़ी फास्ट है। कैजुअल टैक्स पेयर कैन क्लेम ITC. NRTP cannot claim ITC except of imported goods. आप अपने इंपोर्टेड गुड्स का ITC ले सकते हो और किसी का ITC नहीं ले सकते। इंपोर्टेड गुड्स का ITC ले सकते हो और किसी का ITC नहीं ले सकते। एक्सपोर्ट, when registered person apply for extension of registration, then he need to pay net GST on net GST estimated you need to pay net GST estimated payable during such extended period. कर देंगे 28 या पहले UIN कर देते हैं 25(9) UIN unique identification number. यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोला? NRTP नहीं, इंडियन एम्बेसी या इंडियन एम्बेसी नहीं, फॉरेन एम्बेसी, consulate, diplomats, UNO bodies, are not liable to pay tax.
सिंस वो इंडिया में उनको टैक्स ही नहीं देना तो रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए? They shall be entitled for refund of GST paid on their inward supply. उनकी जो इनवर्ड सप्लाई है उनको such refund application can be made on quarter basis within 18 months from end of quarter. For this purpose, such person are allotted कौन पागल हो गया क्लास में हूँ फोन कर रहे हैं such person are allotted या UIN such person can purchase any inward supply and get quoted its UIN on invoice. UIN is not registration number. Hence, such person are not liable to pay GST. Neither claim refund, neither claim ITC, but can claim a refund of tax paid on input service. कुछ और बोलना है? बोलो बोलो कुछ और बोलना है? गुड. और कुछ? UIN, such person can have a centralized UIN. बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे. तुमने लिख लिया? सिर्फ 4 लाइन किया. चलो अब क्या हुआ? UIN हो गया. अब क्या बचा? 28. भैया आजाद में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो. 45 मिनट बचा है.
अभी बहुत बाकी है। रेंज 28, चेंज इन रजिस्ट्रेशन या इंटीमेशन ऑफ चेंज इन रजिस्ट्रेशन। इंटीमेशन ऑफ चेंज इन रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये करने से ये बात तो पक्का है, टाइम भले ही जा रहा हो, बोर भले ही हो रहा हो, लेकिन याद पक्का होती है। मतलब ये तुम घर पे इतनी मेहनत से याद करता तो याद हो जाता है इतने टाइम में, इतना अच्छा याद नहीं होता जितना भी होता है। इंटीमेशन ऑफ चेंज इन रजिस्ट्रेशन, नेचर ऑफ चेंज। बाबा उसको सब याद है भाई, उसी को बोलना यहाँ आ जाए। कैसे याद किया है? फोर चेंज, वाह। मतलब intimate intimate such change to proper officer within, भूल गया कितना दिन था। हाँ, सब डूबे हुए लोग हैं, किसी को ध्यान नहीं है। PO cell make necessary change। यहाँ पे फुल स्टॉप दे देना। PO cell make the necessary change। PO may inquire as it deems fit, as he deems fit। Registered person need to reply
ये सिंबल है चेंज का, पता नहीं तुम्हें पता हो नहीं पता। हो गया क्या? ट्वेंटी नाइन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। दो तरीके से कैंसिल हो सकता है, वॉलंटरी, वॉलंटरी चीज लीजिए, ऑन एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, by proper officer, on application by registered person. इसी काम कर रहा है। A registered person can apply for cancellation of registration in following cases. आप इसको कैंसिलेशन भी बोल सकते हो, सरेंडर भी बोल सकते हो। नंबर 1, क्लोजर ऑफ बिजनेस। Shifting of business to another state, नेक्स्ट में तो याद ही नहीं आ रहा क्या था। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, आप अपना बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हो, आरसी नहीं। अमालगमेशन of business, amalgamation or merger of business, turnover permanently fault before below threshold ceiling, supply become exempted, ये सब वो केसेज है जिसमें डिपार्टमेंट आपका
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप अप्लाई करेंगे और डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करेगा. नंबर 1, द प्रॉपर ऑफिसर में ईदर ऑन इट्स ओन और मोशन द बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड बोला, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड बोला, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर नहीं बोला. लिख लो प्लीज, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर. अमालगमेटेड बोला, इमर्ज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, एक ही बात है, ट्रांसफर्ड में कवर्ड हो गया. देयर इज एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, हाँ पार्टनर ज्वाइन कर लिया या नया बन गया तो द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड. भाई प्लीज चेक करो, गर्मी भयंकर लग रहा है. चल रहा है डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर के बाद चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन. रजिस्टर्ड पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड. ये पॉइंट हमने कवर किया, अलग अलग तरीके से कवर किया. टर्नओवर फॉल्स बिलो, सप्लाई बिकम एग्जेम्प्टेड. पैरा चेंज लेफ्ट हैंड साइड में लिखते जाइए. देखिए ये तो चलते ही ठीक हवा हो गया था. ठीक क्या बोला हमने, लिखा क्या तुमने आगे लेफ्ट साइड में लिखते जाना. सच एप्लीकेशन मस्ट बी मेड, लिखते जाओ लेफ्ट साइड में. सच एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 30 days, within 30 days of occurrence of such event. लेफ्ट साइड में लिखते जाना, राइट में मत जाना. अभी तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वॉलंटरी कैंसिलेशन चल रहा है ना. Such application must be made within 30 days of occurrence of such event. लिखा, stop. However, the time limit shall be interpreted liberally. However, the time limit shall be interpreted liberally. क्या बोलना चाह रहे हो सर? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लॉ ने बोला है कि वैसे तो आपको 30 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन यदि किसी का 34 दिन हो गया, 35 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, 70 दिन हो गया, तो भैया उसको ज़्यादा परेशान मत करो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो. क्यों? क्योंकि किसी का डेथ हो गया है और 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं कर पाया, तो आप उससे लड़ोगे क्या कि 30 दिन में क्यों नहीं दिया, हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा. अच्छा, किसी का बिजनेस बंद हो गया है, वो बोल रहा है सर मेरा बिजनेस बंद हो गया, 4 महीना पहले ही हो गया था, मेरे को किसी ने बताया नहीं था, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना था, अब आया हूँ 4 महीने बाद. तो आप उसको झाड़ सकते हो, डांट सकते हो, 2 बात सुना सकते हो, लेकिन सर रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल करना ही पड़ेगा ना. व्हाट इज द यूज ऑफ कैरी ऑन दैट रजिस्ट्रेशन? द गवर्नमेंट शैल गेट सम मनी. तो फिर वो बंदे तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, वो रिटर्न नहीं भरेगा, फालतू आपके एडमिन में प्रॉब्लम आएगा. इतना लोग का रिटर्न नहीं आया, इतना लोग का रिटर्न नहीं आया, 20-20 रुपये का पेनल्टी लेके आप क्या हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा. तो गवर्नमेंट ने बोला टेक इट लिबरली, 30 डेज हमने बोला है, वो बंदा कभी भी आए लिबरली इंटरप्रेट करो. बात क्लियर? ओके. अब आइए राइट हैंड साइड में, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय पीओ.
टाइटल चल ही रहा है। कितने पॉइंट आपको पता ही है, 12-13 पॉइंट है। ठीक है। इन फॉलोइंग केसेस पीओ सेल नहीं, पीओ में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। थोड़ी देर बैठ के पढ़ा रहा हूँ भाई। हाँ, तुम लोग बहुत ज्यादा दिक्कत तो बोल देना, अदरवाइज चलने दो ऐसे ही। नंबर 1 क्या, he conduct business from place other than declared place of business. He conduct business from a place other than declared place of business. Number 2, he issues invoice without supply. Next, he violates provision of section 171. He violates provision of section 171, that is anti-profiteering. Anti-profiteering. Next, he violates provision of rule 86B. He violates provision of rule 86B. बोले तो at least 1% tax out of e-cash ledger. He violates provision of section 86B, rule 86B, within bracket at least 1% tax out of tax out of e-cash ledger. अरे क्या ब्रूटल फ्रूटल भाई, क्या कर दिया मैंने तैसा तैसा। भाई तो बैठ के अभिनंदन घोष, तो वो इतना परेशान करता है, तो इधर वो वीडियो में बैठ के इधर लाइव में बैठ के आएंगी। बताओ, बोलता है दैट वुड बी ब्रूटल। भैया क्या ब्रूटल, मैंने ऐसे क्या कर दिया तुम्हारे साथ। आओ, पॉइंट नंबर 4 हो गया, 5 हो गया। नंबर नेक्स्ट, he fails to furnish। हाँ, अब मैं समझा क्या बोला। नंबर नेक्स्ट, he fails to furnish bank account within 30 days. He fails to furnish detail of bank account within 30 days. Tax liability in GSTR 1 exceeds GSTR 3B. Tax liability in GSTR 3.1 exceeds GSTR 3B. Tax liability in GSTR 1 exceeds GSTR 3B. हो गया। नेक्स्ट, avails ITC in excess of, avails ITC violating section 16, avails ITC violating section 16, fails to pay monthly return for more than 6 months. फिर से बोलूंगा, fails to furnish GSTR 1 for a continuous period of 6 months. Please change. Fails to furnish GSTR 1 for a continuous period of 6 months.
फेल्स, मैंने क्या बोला, जीएसटीआर 1 बोला क्या पिछले लाइन में? जीएसटीआर 3 भी तो रोज 3B, रिटर्न तो जीएसटीआर 3B है ना. फेल्स टू फर्निश जीएसटीआर 3B फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months. हुआ. नेक्स्ट, फेल्स टू फर्निश क्वार्टरली जीएसटीआर 3B fails to furnish quarterly GSTR 3B for 2 quarters continuously. For 2 quarters continuously. A composite scheme supplier fails to furnish GSTR 4 for 3 months from due date. For 3 months from due date. कितना हो गया? 10. लिख नहीं रहा, नंबर नहीं लिख रहा. Number next. If we, in case of voluntary registration, क्या बोला? In case of voluntary registration, fails to start business for 6 months. Next, इतना सब हो गया. Obtained registration fraudulently. आज तो लगता है यही चप्पल पहन के जाना पड़ेगा यार, बड़ी आरामदायक चप्पल है नहीं? नेक्स्ट, और कुछ बोलना था मेरे को. Violate such other provisions of this act as may be prescribed. Violate such other provisions of this act as may be prescribed. तो भाई साहब ये 13 गलतियां करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की तरफ जाएगा. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पीओ जब कैंसिल करेगा तो क्या करेगा? सीधा कैंसिल करके मेरे को चिट्ठी दे देगा, ये ले तेरा रजिस्ट्रेशन फाड़ के, ऐसे फेंक देगा कि कुछ करेगा? बोलो क्या बोल रहा है? तो उसके पहले आपके पास एक नोटिस आएगी कि भाई आपने ये वायलेशन किया है, हम आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल करें. फिर आप अपना जवाब दो दे. आपके जवाब से या तो सेटिस्फाइड हो जाए, फिर नॉट सेटिस्फाइड. यदि आपके जवाब से वो सेटिस्फाइड है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा, और यदि आपके जवाब से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको एक फाइनल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा. इन सब प्रोसेस में टाइम लगेगी. उधर आप वायलेशन करके बैठे हो. आप जीएसटीआर 1 में दिखाए थे टैक्स लायबिलिटी 40 लाख, जीएसटीआर 3 में आप टैक्स लायबिलिटी दिखा रहे हो 12 लाख. डिपार्टमेंट ने सो कॉज नोटिस दिया, भैया क्या है? हाँ 40 लाख बोला था आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1 में, जब टैक्स देने की बारी आई तो बोलता 12 लाख. ये सब क्या है? गिव मी द रीजंस. अब रीजन तो कुछ ना कुछ बना ही नहीं बंदा. लॉयर के पास जाएगा, लॉयर एक लंबा चौड़ा 4 पेज का ड्राफ्टिंग बनाते देगा, तो वहां पे 20-25 दिन और बीत जाएंगे, और ऐसे टैक्स से चोर और चोरी करेंगे. तो लॉ ने बोला जब तक आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रोसेस चल रहा है तब तक पीओ चाहे तो आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर, और ये सस्पेंशन तब तक चालू रहेगा तब जब तक पीओ डीम्स इट. यदि पीओ को लगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए तब तो सस्पेंशन के बाद कैंसिलेशन, बात खत्म.
और यदि पीओ को लगे कि नहीं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए तो सस्पेंशन विड्रॉन। सस्पेंशन विड्रॉन तो आप रजिस्टर्ड हो, परंतु प्रॉब्लम यह है, परंतु प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप सस्पेंडेड थे तब तक आपका जीएसटीआर काम नहीं कर रहा था। अब जीएसटीआर काम नहीं कर रहा है तो हम लोग लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम अपना इनवॉइस में भी जीएसटीआर 1 नहीं लिख पा रहे हैं, हम अपने इनवॉइस में भी जीएसटीआर नहीं लिख पा रहे। क्यों नहीं लिख पा रहे? सपोज आप एक पार्टी है तो हमने अपना जीएसटीआर वाला इनवॉइस आपको दिया, तो पार्टी तो भैया पार्टी है, उसके साथ उसका यंग बेटा भी है। बेटा मोबाइल निकाला, जीएसटीआर चेक किया, बाप बात कर रहा हो, बेटा जीएसटीआर चेक कर रहा है। बोला सर ये कौन सा जीएसटीआर दिया आपने? हाँ ये जीएसटीआर तो काम ही नहीं करता, फर्जी देता है, फटा 2-4 थप्पड़ मार देगा। अंजलि जैसे भी तो मार्केट में है ना लोग जिनको गुस्सा आता है, फटाक से 2 थप्पड़ खींच के मार देंगे, तो फिर क्या होगा बता? तो ये जीएसटीआर नंबर भी तो दे नहीं सकते। तो जब तक मेरा सस्पेंशन था तब तक मैं जीएसटी इनवॉइस नहीं इशू कर पा रहा हूँ, रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ, और आपका तो बाद में आया कि नहीं नहीं ठीक है जाओ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ऑन है। अरे ऑन है तो हमारा इतना दिन जो सस्पेंडेड था उसका क्या होगा? तो लॉ बोलता है कि जैसे ही आपका सस्पेंशन विड्रॉ होगा तो जितना आपने रिटर्न नहीं भरा था वो वापस अब आप भर सकते हो, और जितने भी इनवॉइस आपने पहले इशू किए थे वो ऑर्डिनरी इनवॉइस थे, ऑर्डिनरी मतलब विदाउट जीएसटी इनवॉइस थे, अब आप उन सबको रिवाइज इनवॉइस दे सकते हो। उन सब पार्टीज को आप पहले इनवॉइस दिए थे जिसमें जीएसटीआर नहीं था, जीएसटी नहीं था, अब आप उन सबको रिवाइज इनवॉइस दे सकते हो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ सस्पेंशन। हाँ ये सारी बातें लिखनी है। बोला था मत लिखो मत लिखो, नहीं हम लोग तो लिखना है, सब बात लिखना है। देखो बैठ के अभिनंदन सेम हियर, तुम जब दिखाई नहीं देता ना तो अच्छा नहीं लगता। मेरे को बोल रहा आप दिखाई नहीं दे रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है, मुझे संभवी दिखाई दे रही है। मैं प्रणवी को रास्ते में मिलूंगा तो पहचानूंगा, अंसरा तो मैं जानता भी हूँ। हाँ चीटर खुद ना आए तो ठीक, हम 15 मिनट के लिए ना आए तो अच्छा नहीं लग रहा है। चलो कहाँ पहुंचे? 11 पॉइंट 12 पॉइंट अपने लिख लिए, नीचे लिखना अपने को। where the PO need to cancel the registration, बट इतना कमेंट कर रहा है ना वहां से बैठने भी नहीं दे रहा है। ये नहीं कि इंसान बैठ के पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने दो। हाँ हम अपना शांति से बैठ के पढ़ा रहे हैं और ये देखो परेशान करते मुझे। अब हम मुंह से नहीं बोलेंगे, जाओ अब आकाशवाणी नहीं होगी। हम बैठ के पढ़ा रहा था बोलते लगता आकाशवाणी हो रहा है। बोल रहा है आप बोलेंगे नहीं तो आपकी राइटिंग कहाँ से समझ पाएगी। Where the PO need to cancel the registration, he shall issue a notice requiring him to show cause within 7 working days. सात दिन के अंदर आपको जवाब देना है।
ऊपर एक बार देख लेना, वाइट अच्छे से कुछ ले रहा हूँ, वाइट वाइट। सेक्शन 30 जीएसटी का अपने क्लाइंट के साथ, मतलब रजिस्टर्ड बंदर हम क्लाइंट बोलते हैं, जीएसटी का अपने क्लाइंट के साथ ऐसा ही रिलेशन है जैसा टीचर का अपने स्टूडेंट्स के साथ। सेक्शन 30 समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे आज सपोज एक टीचर ने होमवर्क दिया, होमवर्क देने के बाद एकदम स्ट्रिक्टली बोला नेक्स्ट क्लास जो जो होमवर्क नहीं करेगा उनको क्लास में एंट्री नहीं देगी। बच्चे ऐसे चल रहा है, उनको ध्यान ही नहीं था होमवर्क दिया है। क्लास में एंट्री की बात, नहीं एंट्री की बात, पूरी बात ही इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। अगली क्लास वैसे ठम 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 करके आके क्लास में बैठ गए। टीचर ने बोला लास्ट क्लास एक होमवर्क दिया था, तब जीप बाहर निकली, कौन कौन नहीं किया, तो लोग हाथ उठाए। हाथ उठाने के बाद टीचर को बहुत गुस्सा आया, एज यूजुअल। टीचर को गुस्सा आया, टीचर ने बोला आउट। टीचर ने बाहर कर दिया। टीचर ने बाहर जरूर कर दिया, लेकिन उसका दिल अंदर से मालूम क्या बोल रहा है, अंदर आ जा यार, अंदर आ जा। उसका अपना मन भी नहीं ले रहा है और बाहर करके यहाँ पे गुस्से में बैठा है और उसका मन नहीं लग रहा है। फिर 5, 10, 12 मिनट पढ़ाएगा, फिर ऐसे जाएगा बाहर, फिर बाहर उनके 15 मिनट पंचायत करेगा, क्या नहीं किए, क्यों नहीं किए, ऐसे लोगों के पास 10 मिनट ज्ञान देगा। फिर ज्ञान देने के बाद लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, और आ जाएंगे बच्चे, बैठ जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही जीएसटी के साथ होता है। तुमने तेरे में से एक वायलेशन किया, जीएसटी डिपार्टमेंट नाराज, अरे तुम लोग ये सब काम किया, हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल करे। वो बेचारा जवाब दिया, उलपटान उलपटान जवाब पे कोई वैल्यू नहीं। तो सब नहीं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल, बट कैंसिल, बट भर जाओ, और कैंसिल कर दिया। कैंसिल तो कर दिया, लेकिन तुम बता जीएसटी लॉ या गवर्नमेंट ये थोड़ी चाहती थी देश से बिजनेस बंद हो जाए, और आपने जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया वो बिजनेस कैसे करेगा। वो बिना जीएसटी के बिल देगा तो पार्टी बिल कहां से लेगा। तो मन ही मन क्या सोच रहा है, आ जाए वापस आ जाए। लेकिन एक बार के लिए तो कैंसिल कर दिया। फिर धीरे से सेक्शन 30 का क्लॉज लाके रख दिया, जिन जिन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है 30 दिन के अंदर वापस अप्लाई करिए फॉर रिस्टोरेशन ऑफ कैंसिलेशन। तो भाई साहब काहे कैंसिल किए थे, बोलता नहीं हम फिर से देखेंगे कि तुम्हारा कितना जस्टिफाइड रीजन है। तो हर जन ही अप्लाई करेगा। मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, मेरी दुकान बंद है, मेरा आईटीसी का बिल नहीं जा रहा है, आईटीसी मिल नहीं रहा है, तो मैं तो अप्लाई करूंगा ही। फिर अप्लाई करेगा, फिर उससे रीजन सुनेगा। तो भाई साहब पहली बार भी तो आपने रीजन सुना ही था, अब कौन सा नया रीजन आ जाएगा। एंड इफ इज सेटिस्फाइड ही मे रिस्टोर द रजिस्ट्रेशन। तो थोड़ा सेंस कम है, लेकिन हम लोग टीचर ये फील समझ सकते हैं कि बेचारा डरा रहा है, ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा, अगली बार यदि ज्यादा बहुत क्रॉस वायलेशन नहीं हुआ तो डांट डूट के वापस रजिस्ट्रेशन दे देगा। अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए। अच्छा, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, अब वो 30 दिन के अंदर अप्लाई करेगा, फिर आपकी हियरिंग होगी, फिर आप सुनेंगे 2, 1.5 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल रहे।
उधर बिजनेस तो बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस में तो हमेशा ही ऑप्टिमिस्ट रहता है, वो सबको बिल दिए जा रहा है, बिल दिए जा रहा है, बोला है इसमें जीएसटी आइन नहीं है, अरे दे देगा तुम तो नया जीएसटी आइन, तुम लेना माल लेना, भाग रहे थे हम कहीं पे, मेरा थोड़ा रजिस्ट्रेशन में लोचा चल रहा है, वो तो सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है, दे देगा। तो पार्टी भी पुराना पार्टी है, माल लिए जा रहा है। अब 4 महीना बाद उसका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हुआ, तो लॉ ये परमिट करता है कि इस गैप में जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होते कैंसिल हुआ और जब आपने रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हुआ, इस गैप में जितने भी आपने इनवॉइस दिए थे वो सब नॉन जीएसटी इनवॉइस थे, सबको आप रिवाइज इनवॉइस दे सकते हो विद इन 30 डेज, और जितने भी रिटर्न आपके पेंडिंग थे अब आप भर सकते हो। ठीक है, बस छोटी सी बात है इसमें, रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। Any registered person whose registration is cancelled by the PO other than no Aadhaar case, आधार नहीं है तो रिस्टोरेशन नहीं होगा। आपको क्या बोला था उस समय, जो जो रजिस्टर्ड है सब आधार दीजिए, आपने आधार नहीं दिया, हमने बुलाया, आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। A registered person whose registration is cancelled within bracket other than no Aadhaar case may apply to such officer, may apply to proper officer for revocation of cancellation of registration, for revocation of cancellation of registration, may apply for revocation of cancellation of registration, may apply for revocation of cancellation of registration। ये टाइम लिमिट पहले कितनी थी, 30 डेज। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि 30 डेज कम है, बेचारा नाराज होकर चला गया, वो आएगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने दिल खोल के टाइम दी। क्या बोल रहे हैं, द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इस 30 डेज को काटते लिखिए 90 डेज, अमेंडमेंट हुआ है। क्या बोला, अभी तो वही हो, रजिस्ट्रेशन ने एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मस्ट बी मेड विद इन 30 क्रॉस 90 विद इन 90 डेज। यदि आपके एमसीसी मैट में 30 डेज का भी नजर आ गया तो आप बोलेंगे भैया कहीं 30 है कभी 90 है। फ्रॉम 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमने क्या बोला, सच पीरियड ऑन सफिशिएंट ग्राउंड एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, सच क्या, सच पीरियड ऑन सफिशिएंट ग्राउंड एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग may, reason to be recorded in writing may extended for further, may extended for a period, may extended for a period not exceeding 180 days, 180 days. On such application, parachange, on such application, if PO is satisfied, it may restore registration. It is rahi, PO may restore registration. Stop parachange. Before making such rejection, before making rejection of such application, before making rejection,
क्या बोला? बिफोर मेकिंग रिजेक्शन फॉर सच एप्लीकेशन, comma, an opportunity of being heard must be given. An opportunity of being heard must be given. आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर जितने सॉफ्ट मोड में हो सकता था ना, वो हुआ. इससे ज्यादा सॉफ्ट मोड में हो नहीं सकता. सॉफ्ट मोड मतलब जितना सिंप्लीफाइड वर्जन कर सकते थे ना, उतना हुआ है. अभी आपको हार्डली 15 मिनट लगेगा घर में रिवाइज. आई विल ट्राई कि बात बात की थ्योरी चैप्टर भी इतने ही सोफिस्टिकेटेड वे में कराए, परंतु ध्यान रखना मैं 10th रेंज में हूँ, 6-7 दिन शॉर्ट पड़ रहा है. संडे तुम आओगे नहीं? एवा विनाश से भी बात करना, कैसे हो सकता है? 8 से 10 लोग बैठने नहीं देंगे यहाँ पे. चलो ठीक है, आज से क्लास तो ओवर.